Welcome everyone. Welcome to Healing Circle Talks. And it just one Saturday we couldn't organize, but feels like ages that we are meeting after a long time. So hope everybody is doing well. And today we have Payal with us, who is today's speaker for today's session. And before we begin the circle, we'd like to read the guidelines. Healing circles are built on the foundation of kindness and respect. We all participants agree to listen to each other with compassion and curiosity. We honor each other's unique ways of healing and don't presume to advise or fix or try to save each other. We hold all the stories shared in the circle within us, and we trust each one of us as guidance we need within us, and we rely on the power of silence to access it. So once again, thank you so much for joining in, and we welcome Payal today to this Healing Circle Talks. Payal says that, hey, cancer, you picked the wrong broad. She was only 13 years old when she get to know about osteosarcoma cancer. Right now, she is 17. She is a dancer and a motivational speaker. She provides awareness to people about cancer and removes the fear of cancer and its stigma in society. She's also going to open an NGO called Sumita Cancer Society in Delhi, so that she can work for people and thus make sure nobody fights the battle alone. Wonderful thoughts and wonderful mission you are on, Payal. So welcome once again, and would like to hear Thank from you so you much, ma'am. about your journey and everything that you have, that the transition, the transformation that you have undergone, and the wonderful work that you are doing today. Also would like to know more about your family as well, because when you were the kid, they were taking care of you throughout. So yeah, please go ahead, Definitely. Kyle. Thank you. Um, First of all, good evening, everyone, and thank you so much, everyone, for joining this video. And thank you, Zen Onko, for giving this opportunity that I can share my story on this platform. It really means a lot for me. Thank you so much, ma'am. पहले मैं ये स्टार्ट करना चाहूंगी कैंसर से, क्योंकि लोगों को यही नहीं पता है कि कैंसर क्या होता है, और लोगों का मानना है कि एक पर्टिकुलर एज पे जाके कैंसर होता है। मतलब लोग सोचते हैं कि या फिर चाइल्डहुड कैंसर नहीं हो सकता है, लोग सोचते हैं कि आफ्टर 40 इयर्स कैंसर हो जाता है। तो ये मैं जरूर बताऊंगी कि कैंसर किसी को भी हो सकता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो इट्स मिडिल एज मैन, कोई भी हो, कैंसर किसी को भी हो सकता है। और इसका सिर्फ एक रीजन नहीं है कि कैंसर सिर्फ एक रीजन की वजह से होता है। आज हमने एक दिमाग में एक चीज बिठाई हुई है कि ठीक है, अगर ये 40 इयर्स है तो इसको कैंसर हो जाएगा, या फिर लाइफस्टाइल की वजह से होता है, लोग सोचते पॉल्यूशन की वजह से होता है। बट इसका मैं सबसे जो बड़ा फैक्टर बोलूंगी वो है लाइफस्टाइल बेसिकली, क्योंकि लोग अनुशासन से नहीं जीते हैं, और जब वो अनुशासन अनकंट्रोल हो जाता है ना, तब हम बीमारियों की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो एक लाइफस्टाइल है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना चाहिए, ताकि आगे जो बीमारियों का खतरा वो कम हो जाए। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2017 से। मेरी जिंदगी बहुत बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत स्मूथ और बहुत कंफर्टेबल एंड बहुत हेल्दी लाइफ जा रही थी। और मैं सिर्फ 13 साल की थी, मैं 13 साल की जस्ट हुई थी। तो हमेशा अपने वर्ल्ड में रहती थी, एंड कभी कैंसर के बारे में सुना नहीं था, कैंसर क्या होता है कुछ नहीं पता था। तो एक बार सडनली पैर में दर्द हो गया, तो मेरे को लगा ठीक है, आई एम अ ग्रोइंग चाइल्ड, आई एम अ टीनेजर, तो बेसिकली ऐसे ही दर्द हो गया होगा। सो आई जस्ट इग्नोर दैट, बट आफ्टर सम टाइम वो दर्द बढ़ता चला गया। तब हमने सोचा इट्स अ मैटर ऑफ थिंकिंग, और फिर चेक करवाना चाहिए। उसके बाद मेरे टेस्ट स्टार्ट हो गए, एक्सरे, स्कैन्स एंड ब्लड टेस्ट, इतने सारे टेस्ट हुए, बट हर टेस्ट में यही रिपोर्ट आती थी कि आई हैव रिडक्शन ऑफ कैल्शियम। तो डॉक्टर्स बोलते थे कि ठीक है, इसको कैल्शियम की टैबलेट दे दो, छोटा बच्चा है, ऐसे ही प्रॉब्लम, पैर में दर्द हो गया होगा, इसको बादाम खिलाओ एंड ऑल दैट। और उन्होंने पेन किलर्स दे दी। एक टाइम था कि जब वो उन्होंने काम करना बंद कर दिया मेडिसिन ने, और एक टाइम ऐसा आ गया था कि पैर पूरा स्वेलअप हो चुका था मेरा, मेरे से चला नहीं जाता था। मैं स्कूल में भी मेरे फ्रेंड्स मेरे को पकड़ के ले जाते थे क्लास तक। तो पैर पूरी तरह से सूज चुका था मेरा। और तब हम मेरा डॉक्टर्स ने बोला कि एक बायोप्सी करवाते हैं, बायोप्सी काइंड ऑफ माइनर सर्जरी। तो मेरी छोटी सी सर्जरी हुई, तो उसमें शायद हमने सोचा कि रिपोर्ट क्लियर आ जाएगी।
तो मेरी फर्स्ट बायोप्सी हुई, उसमें रिपोर्ट क्लियर नहीं आई थी। सेकंड बायोप्सी हुई, उसमें भी रिपोर्ट क्लियर नहीं आई, एंड रिपोर्ट्स वाज शोइंग द सिम्टम्स ऑफ कैंसर। तो उस टाइम पे हमें लगा कि समथिंग इज वेरी वेरी डेंजरस। तो फिर उसके बाद उस टाइम पे ऐसा था कि रिपोर्ट क्लियर नहीं आ रही थी, एंड पता ही नहीं था क्या हो रहा है। बट उस टाइम पे फैमिली ने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया, एंड हमेशा मेरे को हिम्मत दी कि नहीं, तुम कर सकती हो। और मेरे को कभी ये सोचने नहीं दिया कि मैं बीमार हूँ या मैं कोई पेशेंट हूँ। हमेशा मेरे को सब यही बोलते थे कि तुम एक फाइटर हो और तुम इससे बाहर आओगी, एंड यू हैव टू फाइट दिस, नॉट जस्ट फॉर यू, हमारे लिए और लोगों को दिखाने के लिए। तो फिर इसके इसका मैं सबसे बड़ा क्रेडिट दूंगी अपने चाचू को, क्योंकि उन्होंने मेरे को सबसे ज्यादा सपोर्ट किया और हमेशा मेरे को किसी चीज की कमी नहीं होने दी। और हमेशा बोलते थे कि बेटा, तेरे को जो चाहिए वो हम लाके देंगे, हम तेरे को ठीक करेंगे, बट तू हिम्मत रखियो। फाइनली मेरी थर्ड बायोप्सी हुई, थर्ड सर्जरी। एक जगह से फिर से डॉक्टर मेरे को काट रहे थे, एक ही जगह से फिर से थर्ड सर्जरी हुई। तो उसमें बेसिकली ये रिपोर्ट क्लियर आई थी कि हाँ, मेरे को कैंसर है। और मैं एक्चुअली गूगल से बहुत सर्च करती थी कि क्या होता है और क्यों होता है, बट मेरे को कभी कुछ समझ नहीं आता था, वो मेरे दिमाग के ऊपर से जाता था कि क्या है ये। जब ये सुनने में आया, मेरी फैमिली ने कभी ऐसे रिएक्ट नहीं किया कि अच्छा कैंसर है तो हम डरेंगे। उन्होंने हमेशा बोला कि ठीक है, कैंसर है तो हम इसको फाइट करेंगे और हम इसको हराएंगे और हम इससे बाहर आएंगे। और मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था, मेरी कीमोथेरेपी स्टार्ट हुई 2017 में। एंड कीमोथेरेपी के इतने सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, हेयर फॉल, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, वीकनेस, वो सारे साइड इफेक्ट से उस टाइम पे मैं गुजर रही थी। और मैं हमेशा एक चीज सोचती थी कि हमेशा हिम्मत रखनी है, एंड यू हैव टू कीप योरसेल्फ वेरी वेरी मोटिवेटेड उस टाइम पे। एंड मेरी फैमिली ने इतना सपोर्ट किया, कभी मेरे हमेशा वो एक्टिविटीज हम सारी घर पे करते थे जो करनी चाहिए। मतलब अगर मैं बीमार हूँ तो कभी ऐसा नहीं है, अगर कोई फेस्टिवल है तो उसको हमने सेलिब्रेट नहीं किया है, वी वर जस्ट गोइंग विद द फ्लो। और फिर उसके बाद डॉक्टर्स ने मेरी ये रिपोर्ट क्लियर हो गई थी कि मेरे को ऑस्टियोसार्कोमा है स्टेज 1। तो कीमोथेरेपी चल रही थी 1 महीना। डॉक्टर्स ने पूरा सोचा कि कौन सा ऑप्शन मेरे लिए बेटर है, क्योंकि उस टाइम पे मैं बहुत छोटी थी और मेरे लिए बड़ी सर्जरी बहुत डिफिकल्ट थी, और एक सर्जरी के बहुत ऑप्शंस होते हैं। तो डॉक्टर्स ने 1 महीने का टाइम लिया और फाइनली मेरे लिए एक सर्जरी सजेस्ट करी। मेरी सर्जरी 4 अक्टूबर 2017 को हुई थी। मैं 3 अक्टूबर को हॉस्पिटल में गई थी, एंड डॉक्टर्स ने मेरे को चेक किया और मेरे को कमरे से बाहर रखा और मेरे पापा को बुलाया अंदर और बोलते कि आप आ जाओ। एंड डोर वाज ओपन, तो मैं सब सुन रही थी, हालांकि मेरे को समझ नहीं आ रहा था। डॉक्टर्स ने ये बोला कि पायल को ऑस्टियोसार्कोमा है, जिसके लिए हमें उसकी हेमीपेल्विक्टोमी सर्जरी करनी पड़ेगी, मतलब हिप बोन का जो आधा हिस्सा है वो निकालना पड़ेगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट था ये चीज सुनने को। और डॉक्टर्स ने साथ में ये बोला कि इसको 6 महीने का बेड रेस्ट होगा। आप 6 महीने बेड पे, मतलब आप आधा साल बेड पे हो, एंड यू कैन मूव योरसेल्फ। एक पोजीशन में रहना और एक जगह पे रहना बहुत डिफिकल्ट था। तो मैंने सोचा कि ठीक है, अगर ठीक है कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है, ठीक है मैं करूंगी, ये सर्जरी होगी, बेड रेस्ट हो जाएगा, आई विल फोकस ऑन माई रिकवरी। इसके बाद जो सबसे बड़ी चीज डॉक्टर ने बोली वो मेरे लिए बहुत बहुत शॉकिंग थी। डॉक्टर्स ने बोला कि पायल का जो पैर है वो छोटा बड़ा हो जाएगा। ये चीज बहुत बहुत डिफिकल्ट थी, क्योंकि हेमीपेल्विक्टोमी सर्जरी हो रही थी, तो मतलब डॉक्टर्स जो आधी हड्डी है वो निकाल रहे थे, जिसकी वजह से पैर थोड़ा ऊपर की तरफ खिंच गया था। ये थोड़ा डिफिकल्ट था मेरे लिए इस चीज को समझना, क्योंकि मेरे आगे मेरी पूरी जिंदगी पड़ी थी। मेरे को नहीं पता था कि मैं कैसे करूंगी, क्या करूंगी। बट ठीक है, मैंने बोला ठीक है, ये मैं सर्जरी करते हैं और देखा जाएगा जो होगा। और हमेशा मेरी फैमिली ने बोला था कि तू हिम्मत रख बस, और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और मेरे चाचू ने इतना ज्यादा हमेशा से मेरे को सपोर्ट किया स्टार्टिंग से। और और जो जितना कैंसर आपको फिजिकली डिस्ट्रॉय करता है ना, उससे ज्यादा वो आपको आपकी मेंटल लेवल पे बहुत असर करता है। तो इमोशनली और मेंटली स्ट्रांग रहना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
एंड उसकी वो जो चीज होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है उस टाइम के लिए, क्योंकि जितना वो आपको फिजिकली डिस्ट्रॉय करेगा उतना ही वो आपकी मेंटल लेवल पे आपको इम्पैक्ट करता है। मेरी सर्जरी हुई और अगले दिन मैं आईसीयू में थी। अगले दिन मेरे को होश आया था, तो मेरी पूरी सर्जरी हो चुकी थी और मेरा दूसरा पैर भी थोड़ा सा जल चुका था बिकॉज ऑफ, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर में इतनी लाइट्स होती हैं एंड इतनी हार्मफुल रेडिएशंस होती हैं, तो एक पैर की सर्जरी हुई थी तो दूसरा पैर भी थोड़ा सा जल चुका था मेरा। हालांकि वो ठीक हो गया था। और मेरा 6 महीने का बेड रेस्ट था और मैं हर एक दिन में इतना रोती थी ना, इतना रोती थी, मैं सबको इतना परेशान करके रखती थी। बट उस टाइम पे मैं एक चीज सोचती थी कि ये बुरा वक्त है और ये चला जाएगा और तेरे को सिर्फ हिम्मत रखनी है पायल, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी होता है, हिम्मत बहुत जरूरी होती है। अगर आपके अंदर वो हिम्मत है, वो जुनून है, वो जज्बा है किसी भी चीज को हराने के लिए, मैं सिर्फ कैंसर की बात नहीं कर रही हूँ, इतनी प्रॉब्लम्स है दुनिया में, आप उसको, आपके सामने घुटना टेकना ही पड़ेगा। अगर आपकी हिम्मत से बड़ा इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। पॉसिबल सब कुछ है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। तो मेरा बेड रेस्ट चल रहा था और मैंने उस बेड रेस्ट को 3 महीने में कंप्लीट किया इंस्टेड ऑफ 6 मंथ्स। डॉक्टर्स थोड़ा शॉक थे कि इसने इतना जल्दी कैसे कर लिया। और इसका पूरा क्रेडिट मैं अगेन अपने चाचू को दूंगी, क्योंकि हमेशा इतना सपोर्ट किया, इतना मोटिवेट किया। और बोलते हैं ना कि भगवान आपको दे के भी आपसे इतनी सारी चीजें ले लेते हैं, बट उन्होंने सिर्फ मेरे को दिया है, कभी मेरे को किसी चीज के लिए मना नहीं किया। और आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू स्टम्बल अपॉन अ वेरी गुड सपोर्टिव सिस्टम। मेरे फ्रेंड्स इतने अच्छे थे, मेरी टीचर्स, मेरी फैमिली, सबने इतना ज्यादा सपोर्ट किया उस टाइम पे और कभी मेरे को डिमोटिवेट नहीं होने दिया। मेरी सर्जरी खत्म हुई थी और मेरा बेड रेस्ट फिनिश हुआ। एक सर्जरी मेरी हो चुकी थी, मेरी एक्चुअली तीसरी सर्जरी थी, क्योंकि चौथी सर्जरी थी, 3 बाइप्सीज पहले हो चुकी थी, ये फोर्थ सर्जरी थी मेरी। और मेरी कीमोथेरेपी साइड बाय साइड जा रही थी एंड अलग से कीमोथेरेपी के हार्मफुल साइड इफेक्ट्स। मेरा 3 महीने का बेड रेस्ट फिनिश हुआ और मैं वॉकर से चलती थी, उस टाइम पे मैं खुद से नहीं चल पाती थी। और वो टाइम ऐसा था, मैं 7th क्लास में थी। डॉक्टर्स ने बोला कि तुम इस क्लास को रिपीट कर लेना। मैंने बोला नहीं, क्लास तो रिपीट नहीं कर सकती। एंड कोई भी नहीं चाहेगा कि आपके जो क्लासमेट्स हैं वो आपसे क्लास आगे चले जाए एंड फिर आप पीछे रह के आप उसी क्लास को रिपीट कर रहे हैं। और मैंने वॉकर से जाके स्कूल में एग्जाम्स दिए थे और जैसे ना तैसे करके मैंने एग्जाम्स दे दिए, मैंने अपनी रिकवरी पे फोकस किया। एंड उसके बाद मेरे को ऐसा लगा कि ये नीड है कि लोगों को पता चले कि कैंसर क्या होता है और इसके जो स्टिग्मास है सोसाइटी में, इस चीजों को भी लोगों के बारे में पता चले। मेरी सर्जरी खत्म हुई, मैं वॉकर से चलती थी, धीरे धीरे रिकवरी चल रही थी, एक्सरसाइज करती थी और फिर धीरे धीरे मैं स्टिक से चलती थी और फिर धीरे धीरे स्टिक मेरी छूट गई थी। और फिर डॉक्टर्स ने मेरी एक और सर्जरी की। उन्होंने बोला अगर इसका पैर छोटा बड़ा है तो हम इसकी एक सर्जरी करते हैं जिसमें इसका पैर इक्वल हो सकता है। अगर हम राइट लेग की ग्रोथ रोक देते हैं तो लेफ्ट लेग उसके इक्वल हो जाएगी एंड उसका जो डिफरेंस है वो ज्यादा नहीं होगा पैर में और मेरे को फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं होगी। और मेरी 2018 में फिर से सर्जरी हुई थी। मेरे पैर में, मेरे नीज में एक्चुअली पिंस डाली डॉक्टर ने, स्टेपल पिंस काइंड ऑफ, ताकि राइट लेग की जो ग्रोथ है वो रोक दे और लेफ्ट पैर उसके इक्वल हो जाए। उस टाइम पे मैं भी बहुत रोती थी और पैर को छोटा बड़ा देखना बहुत डिफिकल्ट बात होती है, बिकॉज एज अ गर्ल एवरी गर्ल इज सो मच कॉन्शियस अबाउट हर लुक्स एंड एवरीथिंग। तो डॉक्टर्स ने सर्जरी करी। उस टाइम पे मेरे पैर में कुछ 2 इंच का डिफरेंस था, अभी मेरे पैर में 1 इंच का डिफरेंस है। उसके बाद मेरे को ये नीड लगी। एक्चुअली मेरे को ट्रीटमेंट के 1 साल या 2 साल बाद मेरे को पता चला अच्छा मेरे को कैंसर था। तो मैं हमेशा ट्रीटमेंट के टाइम सोचती थी कि ठीक है कैंसर है, होगा कुछ ऐसे ही। तो मेरे को एक्चुअली ट्रीटमेंट के बाद पता चला कि कैंसर क्या होता है और ये सोसाइटी को जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके स्टिग्मास जितनी भी चीजें हैं इसके बारे में जानना। इसके बाद एक्चुअली फिर मैंने धीरे धीरे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया कि चलो इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। और उसके बाद मैंने फर्स्ट इवेंट में पार्टिसिपेट किया। फिर मैं धीरे धीरे, मेरे को डांस करने का शौक था तो मैं धीरे धीरे स्टेज परफॉर्मेंसेस देने लग गई। उसके बाद मेरे को डॉक्टर्स ने बोला कि पायल यू हैव टू डू समथिंग वेरी वेरी बिग, बिकॉज एक
एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था, और जब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था और मेरी रिपोर्ट क्लियर नहीं आ रही थी कि मेरे को प्रॉब्लम क्या है। मेरा पैर पूरी तरह से सूज चुका था, पूरा पैर वो स्वेल्ड अप। एंड मम्मा पापा, आई यूज्ड टू स्लीप विद माय पेरेंट्स, और मम्मा पापा पूरी रात पैर दबाते थे, तब मेरे को जाके थोड़ा सा मेरे को आराम लगता था। तो उस दिन रात को आई वॉज फीलिंग वेरी इनसिक्योर, मेरे को लगा कि नहीं, कुछ तो अजीब लग रहा है। मेरे को नींद नहीं आ रही थी उस दिन रात को, और पापा ने बोला कि तू सो जा, ठीक है, कुछ नहीं होगा, यू जस्ट स्लीप एंड नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने माइंड में। एंड सडनली मेरे को पैरालिसिस अटैक आ गया, और वो सिर्फ अटैक मेरे को सिर्फ इसलिए आया बिकॉज ऑफ दैट पेन, क्योंकि वो दर्द इतना ज्यादा बढ़ चुका था। मेरी बॉडी पूरी स्टिफ हो चुकी थी, मेरे हाथ पैर मूव नहीं कर रहे थे, मेरी पूरी बॉडी स्टिफ थी, मेरे को नहीं पता था मेरे को क्या करना है। उस टाइम पे मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ थी, मम्मी पापा चाचा चाची दादा दादी, मेरे भाई बहन सब मेरे साथ थे उस टाइम पे। एंड पापा पैर रब कर रहे हैं, चाचू हाथ रब कर रहे हैं, एंड सब बोल रहे थे कि चलो हॉस्पिटल लेके चलते हैं। बट उस टाइम पे मेरे को लगा कि नहीं, एवरीथिंग इज फिनिश्ड नाउ, अब सब खत्म है। बट कहीं ना कहीं एक अंदर से आवाज आ रही थी कि नहीं पायल, तेरे को फाइट करना है एंड इस चीज से बाहर आना है। आई डोंट नो मेरे को 15 मिनट बाद क्या हुआ, और मैंने इतनी हिम्मत रखी हुई थी कि नहीं, इस चीज को अब हराना है, और जो होगा देखा जाएगा। और कंटिन्यूअसली मेरी फैमिली मेरे को मोटिवेट कर रही थी। 15 मिनट बाद मेरे को पता नहीं क्या हुआ, मैं नॉर्मल हो गई, आई डोंट नो। और अगले दिन हम हॉस्पिटल गए, और डॉक्टर्स ने रिपोर्ट्स देखे, एंड ही वो शॉक्ड कि ये क्या हो गया। उन्होंने बोला कि ये जो मेरे को अटैक आया था, इसमें सिर्फ 0.5% चांसेस होते हैं बचने के, बट आई हैव गॉन थ्रू इट, और मैंने इसको पता नहीं कैसे झेला है। उन्होंने बोला अगर शायद कोई और बड़ा होता तो शायद नहीं बच पाता। डॉक्टर्स ने उस टाइम पे मेरे को बोला, पायल यू आर अ गॉड गिफ्टेड चाइल्ड, एंड तुम्हें अब लड़ना है इस बीमारी से, और मैं तुम्हारा पूरा पूरा साथ दूंगा, तुम्हारी ट्रीटमेंट में कोई हम वो नहीं रहने देंगे, बट तुम्हें हिम्मत रखनी है। और मैं हर एक कैंसर सर्वाइवर को ये बोलना चाहूंगी कि हिम्मत से बड़ी कुछ चीज होती ही नहीं है। अगर आपके अंदर हिम्मत है, आपके अंदर वो जुनून है, वो जज्बा है उस चीज को हराने के लिए ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो अपनी जिंदगी में। देखो, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन छोटी छोटी प्रॉब्लम से हम हिम्मत हार देंगे। लोगों लोगों के नंबर कम आ जाते हैं क्लास में, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। कुछ लोग कैंसर पे सिर्फ नाम सुन के सुसाइड कर लेते हैं। तो मेरे साथ कितनी सारी चीजें हुई हैं, बट मैं कभी डिप्रेशन में नहीं गई। तो हमेशा ये बोलूंगी कि अगर तुम जिंदगी में आए हो ना, तो इसको तुम्हें जीना पड़ेगा। और उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और ये बोलते हैं ना कि जिंदगी में आए हो तो ये जरूरी नहीं है कि हारना है या जीतना है, तुम जिंदगी में आए हो तो इसे खेलना जरूरी है। और भगवान उन्हीं उन्हीं लोगों का टेस्ट लेते हैं जो बहुत स्ट्रांग होते हैं। और आज मैं भगवान की दया से बहुत अच्छा कर रही हूँ अपनी जिंदगी में, और अभी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी फैमिली ने मेरे को इतना ज्यादा सपोर्ट किया। एक कैंसर ट्रीटमेंट में फैमिली सपोर्ट बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और मेरे चाचू ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। आज मैं उनको बोलती हूँ अगर मेरे को एनजीओ खोलना है, तो इज लाइक चलो ओके, हम एनजीओ खोलते हैं, विल डू समथिंग बेटर फॉर द सोसाइटी। और अभी मैं 17 साल की हूँ, और मैं 11th स्टैंडर्ड में हूँ। एंड मैं सिर्फ कैंसर इवेंट्स में मैं स्टेज परफॉर्मेंसेस देती हूँ। आई जस्ट यूज टू मोटिवेट ऑल दोज हु आर फाइटिंग फ्रॉम दिस इलनेस राइट नाउ, कि शायद उनकी थोड़ी सी मैं उनको उनके अंदर ये चीज जगा सकूं कि नहीं, वो अगर सब इस बीमारी को हरा सकते तो तुम क्यों नहीं हरा सकते, तुम भी इस बीमारी से लड़ सकते हो। और अभी मैं 11th क्लास में पढ़ती हूँ, और नवंबर में आई विल ओपन एन एनजीओ जो कि लोगों के लिए काम करेगा, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। विल प्रोवाइड फ्री न्यूट्रिशन टू द पीपल, एंड हम स्क्रीनिंग टेस्ट करेंगे, एंड सारी चीजें हम उसमें जितना मेरे से होगा मैं अपना बेस्ट करूंगी। और जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और शायद इसी को जिंदगी बोलते हैं, कि अगर आप जिंदगी में आए हो तो इसे खेलना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं ये जरूर बोलूंगी लास्ट में कि ये मत देखो कि जिंदगी कितनी बड़ी है या जिंदगी में कितने लम्हे हैं, ये देखो कि उन लम्हों में कितनी जिंदगी है। जी जी के मरने से अच्छा है कि आप जी जी के मरे, वो ज्यादा बेटर है। अगर आप मर मर के जी रहे हैं तो इससे अच्छा है कि आप जी जी के मरे। तो यही मेरा सबको लास्ट में स्लोगन है, या मैं बोलना चाहूंगी, मैं बोलना चाहती हूँ सबको कि कभी हिम्मत मत हारो, क्योंकि जिंदगी बहुत खूबसूरत है कैंसर के बाद। और ये मत सोचो कि कैंसर के बाद
आपकी जिंदगी नहीं है, या कैंसर इज द एंड ऑफ लाइफ। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, और मेरा ऐसा पर्सनली मानना है, मेरे को अपने एक्सपीरियंस से ऐसा लगता है कि जिंदगी आपका टेस्ट लेती है, और सिर्फ इसलिए लेती है कि आप कितने स्ट्रांग हो। और मेरा मानना है कि कैंसर आपके विल पावर को टेस्ट करता है कि आप कितने स्ट्रांग हो या नहीं हो। तो सिर्फ कैंसर एक छोटा सा वर्ड है, इसको ये मत सोचो कि ये कुछ बहुत बड़ा है या आप इससे जीत नहीं सकते। बहुत छोटा, कैंसर एक छोटा सा वर्ड है, तो इसको कभी इतना ज्यादा आप रोइए मत इसको सुन के, क्योंकि ये छोटी सी बीमारी है, एक बुखार की तरह है। एंड इफ अगर आप जिंदगी में आए हो, देन इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू हैव कम, you have to die and you have to dissolve, you have to do something better in your life, and you have to leave a better world behind. So that was all my journey from a cancer a patient to a cancer fighter. Thank you so much, everyone. Thank you so much, Payal. And I can see everybody's expressions. So I'll just see if I can unmute all together. Yeah, so you all can unmute and share what you want to share. I'm like very amazed by just listening to you. बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है आपका जर्नी, एंड उसके मतलब जर्नी सबका ही इंस्पायरिंग होता है, बट जिस तरीके से आपने उसको एक अपना लाइफ का पर्पस बनाया, और जिस तरीके से आज लोगों को मोटिवेट कर रहे हो, एक इंस्पिरेशन हो, इट्स रियली वेरी courageous and very commendable. I mean, like I was seeing everybody's expressions, and then they're like, wow, she's so young. She's only 17, still teenage, and you were 13 when you were diagnosed with cancer, right? But the kind of maturity Yes, and ma'am. perspective you have towards life is just amazing. Thank you for what you do. Thank you so much, ma'am. It's my pleasure that आपने ये opportunity दी कि मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, और मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, और क्योंकि अब मैं इसका एक हिस्सा हूँ और लोगों तक मेरी स्टोरी पहुंचेगी। और कोई भी अगर कैंसर पेशेंट है, आप अपने पैशन को फॉलो करिए। आई एम लिविंग विद अ डिसेबिलिटी, और मैं कभी ये सोचती नहीं हूँ कि मैं एक डिसेबल चाइल्ड हूँ, बट मैं हर वो चीज करने की कोशिश करती हूँ जो मेरे को अच्छी लगती है। So just follow your passion and just listen to your heart. That's it. Wow, it's very true. Thank you. Would like to hear from others as well. Neha, would you like to share? Hi Dimple जी, hi Payal. आप ना बहुत 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 स्ट्रांग हो यार बच्चा। मतलब मैं जब से स्टार्टिंग मैंने आपका सुना ना, तो मतलब ऐसे हो रहा था कि बस मैं आपको आपके पास आ जाऊं और एक टाइट हग दे दूं आपको। मतलब आप इतने प्यारे और इतना अच्छा, मतलब मैं सोच रही हूँ स्टोरी तो ठीक है सभी की होती है, हम सभी ने फाइट किया है, लेकिन एक स्टोरी को एक्सप्रेस करना विथ इतना पॉजिटिविटी के साथ। और मैं शायद वही सोचती हूँ कि शायद भगवान है ना, अगर तकलीफ देता है, अगर बच्चों को देता है, तो बच्चे खुद इतने स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि इतनी छोटी एज में आप खुद बोल रहे हो हम फैमिली ने इतना सपोर्ट किया। अरे इस उम्र में आज मेरा बेटा भी 11 साल का है, लेकिन मैं उसको उस चीज के साथ रिलेट नहीं कर सकती कि 13 साल में इतनी समझ कैसे आप में आई है। मैंने कहा ये सब भगवान आपको दिया है, आप ब्लेस्ड हो, और इतनी पॉजिटिविटी के साथ जो आपने अपनी जर्नी इतनी अच्छे से निकाली है, और आपके चाचू को आप इतना थैंक्स बोलते हो, बहुत अच्छा लगा। बच्चे ऐसे ही बस ऐसे ही बस मतलब आगे बढ़ते चलो और स्ट्रांग रहो। गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू नेहा। हाउ आर यू नेहा? अच्छी हूँ दीदी, अभी अब बस आगे वापस से आने वाला है 4 दिन बाद एक तो दीदी मत बोलो कि मेरे को बहुत बड़ा बड़ा लगता है। नहीं, वो एक स्टार्टिंग से मेरी आदत सी बन गई है, तो मैं तो आपको शायद इतनी रिस्पेक्ट तो मैं आपको दूंगी, इससे ज्यादा देनी थी, बट ये स्टार्टिंग एक रिस्पेक्ट है जो मैं कभी नहीं आपको डिम्पल बोल सकती है, डिम्पल दी रहेगा। 2 बच्चे आपके हैं नेहा, मेरे नहीं। नहीं वो अपनी जगह है, लेकिन ये आपकी रिस्पेक्ट अपनी जगह है। थैंक यू दी। थैंक यू नेहा दीदी। Good. So Neha ma'am is a cancer fighter. Oh, she has amazing journey. She first had cancer. She was also pregnant. छोटू, इसको 5 साल का हो गया, कैंसर मुझे हो गया। Wow. Her journey is very inspiring herself, and thank you so much. Yeah. So she has won over cancer multiple times, and उसको देख के लगता नहीं कि अभी भी वो ट्रीटमेंट ले रही है। So I mean your treatment is going on right now. अभी रिलैप्स हो गया था, तो वापस से चल रहा है।
पर ये सब डिम्पल I दी mean, इधर ऐसा बहुत देख के सारे मेरे फेवरेट्स हैं जिनकी ब्लेसिंग से मैं आज वापस से यहाँ बैठी हूँ और इतनी प्यारी बच्ची को सुन रही हूँ। Ma'am, you are a cancer fighter. Like you are an inspiration to me. Like यहाँ पे fighting सभी लोग cancer हैं, multiple यहाँ times. पे यहाँ पायल यहाँ सारे लोग हैं और उन्हीं से मैंने सीखा है। मैं अकेली ऐसे फाइटर नहीं बन गई। तो मैं यहाँ पे इतने मतलब इतने अच्छे मेरे फेवरेट लोग हैं जिनको मैं मतलब थैंक यू तो बहुत छोटा हो गया इसीलिए मैं मतलब बस दिल से उन लोगों को थैंक यू बोलती हूँ। काफी अच्छा लग रहा है कि आई एम हियर and we all are here together sharing these beautiful stories. Thank you. Yeah, would like to hear from Anuradha auntie. हेलो डिम्पल, हाय पायल। तुम्हारी स्टोरी सुन के रियली आई, हाँ मतलब इतनी छोटी उम्र में तुमने इतनी चीजें सीख ली है ना जो शायद हम इस उम्र तक भी नहीं सीख पाए। और मतलब जिस तरीके से तुम अपनी स्टोरी नरेट कर रही थी, हेड्स ऑफ टू यू। मतलब लिटरली जैसे नेहा बोल रही ना, ऐसा लग रहा था आके एकदम जोर से टाइट हग कर दे तुमको। इतनी ब्रेव गर्ल हो और इतनी प्यारी हो और इतना अच्छा काम तुमने शुरू किया है। मतलब शायद जैसे हम मुझे कैंसर हुआ था 2008 में, तो उसके बाद मैंने लोगों की सेवा करना शुरू करी। तो ईश्वर ने तो तुम्हें बहुत जल्दी 13 साल की उम्र में ये चीज देख करके अभी से ही तुमको हम सबसे ऊपर कर दिया है। इतनी तुमको लाइफ के प्रति ज्ञान और इतना सब चीजें हो गई और इतना सेवा भाव, और तुम्हारी फैमिली भी बहुत सपोर्टिंग है। ये भी बहुत सुन के बहुत अच्छा लगा। और जो तुमने अपने चाचा के लिए कहा और सबके लिए कहा, दैट इज मतलब अमेजिंग। और जो तुम जिस तरीके से अपनी स्टोरी नरेट कर रही थी ना बेटा, ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं उसको फील कर पा रही थी कि ऐसा ऐसा तुम्हारे साथ हुआ था। आई कुड विजुअलाइज दैट। और हेड्स ऑफ टू योर स्पिरिट। और मैं बहुत सैल्यूट करती हूँ तुमको, गजब की हिम्मती लड़की हो। लव यू। थैंक यू सो मच मैम। बोलते हैं ना कि इंसान अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। अगर हमें जब ठोकर लगती है ना जिंदगी में, तभी हम सीखते हैं। हाँ, और एक बात और बोलना चाहूंगी, जो तुमने बोला वो मैं भी एग्री करती हूँ कि ईश्वर जानता है कि जर्नी से कौन निकल सकता है। वो जानता है जो हिम्मती है उसी को ये बीमारी देता है। नहीं तो दुनिया में इतने लोग हैं पर शायद उन सबको नहीं आती, पर जो इससे लड़ सकता है ईश्वर उसी को चुन के ये बीमारी देता है, ताकि हम बहुत अच्छे अपने जैसे बहुत अच्छे लोगों से मिल सकें। जैसे अब तुमसे मिल पा रही हूँ मैं, और हर सैटरडे ये जो सेशन होता है हर बार लगता है कि गजब ही है। मतलब कितनी दुनिया में लोगों की सफरिंग है सुन के लगता है, और बहुत मोटिवेशन मिलता है कि कितने अच्छे से सब उस जर्नी को निकालते हैं। हेड्स ऑफ टू यू। लव यू बेटा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच मैम। Thank you, Anuradha auntie. And Payal, like Anuradha auntie is also cancer vijeta, and she is helping of other cancer patients from Indore. She is running संगिनी, और उसके थ्रू बहुत सारे अवेयरनेस सेशंस करते हैं, पेशेंट्स को काउंसलिंग करते हैं। और ब्रेस्ट कैंसर जो मंथ चल रहा है उसमें भी वो लोग हमेशा काफी सारे इवेंट्स, फैशन शोज सर्वाइवर्स के साथ में, पेशेंट्स के साथ, कैदियों के साथ ऑर्गेनाइज करते हैं। तो अमेजिंग एंड मैम, अगर शायद हमें ये चीज नहीं होती तो हम शायद इतना नहीं कर पाते। अगर मेरे को कभी कैंसर के बारे में नहीं पता था, अगर आई फील सो ब्लेस्ड हैविंग कैंसर, एंड इसके बाद मैं इतनी चीजें कर पा रही हूँ। आज मैं इतने लोगों से इंटरेक्ट करती हूँ। इन टर्म्स ऑफ पर्सनैलिटी बहुत चेंज आया मेरी जिंदगी में। मैं एक छोटी सी मेरी जिंदगी थी नो, जो स्कूल जाना आना खेलना एंड वो सारी चीजें ना, इससे बाहर कभी मैं निकली नहीं। तो मैं हमेशा सोचती हूँ अगर ठीक है, अगर हुआ है तो भगवान ने कुछ अच्छा ही प्लान किया होगा मेरे लिए आगे। सबके लिए। जैसे अनुराधा मैम है। हाँ, नहीं मैं बोल रही हूँ ईश्वर ने तुम्हारे लिए बहुत बड़ी उड़ान लिखी है पायल, इसलिए तुम अभी से ही पंख फैला के इतना उड़ रही हो। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है पायल। ये प्राउडली बोलना चाहिए लोग। मैंने बोला जो भी आप ये लाइन बोल रहे हो ना कि ब्लेस्ड, मैंने कहा मैं भी हमेशा कैंसर को ब्लेस्ड मानती हूँ। पहले उससे पहले एक हाउसवाइफ तो मैं आज भी हूँ, पहले भी थी, लेकिन उस टाइम सिर्फ घर की चिंता में, अपने लिए कभी सोचना नहीं है। और आज ऐसा लगता है नहीं यार, मैं पहले खड़ी होंगी, पहले मैं अपने आप को देखूंगी और मैं लोगों को अवेयर करवाऊंगी, वो मेरी। तो मैं हमेशा कैंसर को ब्लेस्ड बोलती हूँ कि मुझे इतने अच्छे अच्छे जेम्स मिले लाइफ में। हाँ जी मैम।
आप नए नए डॉक्टर से मिलते हैं। मैंने अपनी जर्नी के थ्रू में इतने डॉक्टर से मिली हूँ, इतने साइकोलॉजिस्ट से मिली हूँ, और स्पेशली इतने सारे कैंसर सर्वाइवर से मिलने का मौका मिलता है। उनकी स्टोरी सुन के इतनी इंस्पिरेशन मिलती है। आपसे शायद मैं नहीं मिल पाती, बट यू नो इस सेशन के थ्रू वी आर हम सब मिल पा रहे हैं और एक दूसरे से अपनी स्टोरी शेयर कर पा रहे हैं, इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। Right. Thank you. Would love to hear from Mehul. Hi Payal, how are you? You are good, I know. I'm good, sir. How are you? How are you, sir? Right. I'm doing great, and it's really nice to hear you. I'm in the morning, like I'm in the US, so मुझे like sir, I just thought because मैंने YouTube पे देखा तो I just saw you, मेरे को आप ही याद हो, so I was like no, आप इंडिया में तो नहीं हो अभी। नहीं, लेकिन मेरे को तुम्हारी ना भाषा एकदम अच्छे से आती है because I speak very much like you, the intonation, so I felt like yeah, ये तो अपने neighboring में कहीं तो भी रहते हैं ये पायल, ऐसे मुझे लगता है, but it was very nice to listen to your story and I felt very good, and मतलब सबके चेहरे पे देखो वैसे एकदम everyone is smiling and we all are somehow touched by cancer. I am a throat cancer survivor, and you know, so we hold each other's hands, and we you know, if someone is down one day, we'll just stand together, you know, we'll stand together and we just fight together. Exactly, and your story is very inspiring and very motivating. Even for you know, see Anuradha ji, she is so inspired by you. So keep doing the good job. If you ever feel to reach out to anyone from this group, feel free to reach out to Dimple. Thank and you so get much, contacts. Sir. And yes, sir, definitely. And about the NGO thing, yeah, it's a very nice way of thinking and giving back to the society. It's your yes, it's like my kid is 15, like you know, he is not even that mature like you are. So definitely you are very different from the rest of the kids of your age. Take this as an advantage, okay? This is cancer सबको नहीं होता, only जो lucky people होते हैं उनको ही होता है. And for an NGO, if you need any help, I'm a throat cancer survivor. If someone is going through the same journey, you can always feel free to reach out. I can share my experience and thoughts and all. Sir. Definitely. And all the best to you in your life. Thank you so much, sir. You will be very, very successful always. Blessings. Thank you. It's lovely talking to you. Thank you. Yeah. Thank you. Would love to hear from Deepak ji. Hi, Deepak ji. I think उनको शायद सुनाई नहीं दे रहा है. ठीक है. So Payal, I wanted to understand जब आप उस जर्नी से निकल रहे थे. Sorry. Hi Deepak ji. Hello madam, how are you? All good. How are you? Fine. तो पायल को यही बोलना है कि यहाँ डॉक्टर मुखी है बॉम्बे में. आपका जो लेग का प्रॉब्लम है. हाँ जी सर. हेलो. हाँ जी सर. सुन रहे हैं. जो लेग का छोटा बड़ा है ना वो नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि मेरी भाई की बेटी का अभी सर्जरी किया. पहले उसका भी यही सेम प्रॉब्लम था, तो डॉक्टर मुखी ने किया और 2 महीना लगा, लेकिन अभी वो नॉर्मल हो गई एकदम से. हाँ जी. ओके सर. एक्चुअली सर मैं कल परसों ही अभी डॉक्टर के पास गई थी इसी चीज के लिए, टू ओवरकम दैट डिफरेंस. एक लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी होती है जिन्होंने एडवाइस किया. इज देयर दीपक अंकल है क्या वो इधर? हाँ दीपक बोलेंगे. सर आप मेरे को प्लीज कांटेक्ट करना अगर इस चीज के बारे में मेरे को और डिटेल मिलती है. नो सर, आई एम नॉट गुजराती. सोलंकी सर ने दैट्स व्हाई आई आस्क यू. No sir, I'm not Gujarati. I'm from Delhi. Okay. Thank you. So if you want, you can contact me. I will give you all the guidance for that. Okay, so Dimple ma'am आपका नंबर दे देंगी मेरे पास. मैम, can you forward his number? I'll contact him. ठीक है, definitely. Okay, I'll contact. Thank you. So Payal, when you were going through the journey and what was, because आप उस वक्त बच्चे थे, तो तब भी आके आपको सारी चीजें समझ में आ रही थी, क्योंकि उस वक्त ऐसा होता है कि एंड आपके पेरेंट्स ज्यादा बड़े शॉक से निकल रहे होंगे, तो उनका रिएक्शन, उनका फीलिंग्स, उनका पेन, उनका सफरिंग, स्ट्रगल, वो कैसा था? एंड हाउ डिड जब हाँ जी मैम.
मैम जब मेरे को ये सुना, मतलब क्योंकि मेरे को तो पता ही नहीं था कैंसर क्या होता, कभी सुना ही नहीं था नाम, तो मेरे को लगा काइंड ऑफ, क्योंकि मैं हमेशा, मेरे से कोई पूछता था ना उस टाइम पे कि तुम्हें क्या हुआ है, बिकॉज आई जस्ट स्टार्टेड पोस्टिंग पिक्चर्स आफ्टर माई कीमोथेरेपी, आफ्टर माई हेयर फॉल। सो माई चाचू सेड कि तुम ना ज्यादा मतलब वो मत करो कि तुम घर पे रहो, तुम जाओ बाहर इंटरेक्ट करो लोगों के साथ, अपनी जर्नी शेयर करो। तो ही आस्क्ड मी कि यू कैन पोस्ट योर पिक्चर्स ऑन सोशल मीडिया। सो आई जस्ट पोस्टेड माई फर्स्ट पिक्चर एंड उस पे फिर कमेंट्स आना स्टार्ट हुआ कि व्हाट हैपेंड टू यू। मेरे को नहीं पता था एग्जैक्टली कि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि उस टाइम पे रिपोर्ट्स क्लियर नहीं आई थी। तो मैं सबको यही बोलती थी कि आई हैव नॉट इन माई पेल्विक गर्डल। मेरे को लगा कुछ गांठ जैसा होता हुआ, क्योंकि लोग बोलते हैं ना कि शायद, मेरे को ऐसा बोला जाता था कि तुम बचपन में कहीं गिर गई होगी तो वो शायद जो वो गांठ है उसने कैंसर का जो ट्यूमर का जो वो है वो रूप ले लिया। तो मेरे को तो इतना ज्यादा शॉक नहीं हुआ था, बट हाँ मैं रोती बहुत ज्यादा थी, क्योंकि मेरे को उस टाइम पे, बिकॉज आई वॉज गोइंग थ्रू दैट, एंड उस टाइम पे सिर्फ एक ही चीज थी, टू इंड्योर द पेन। वही चीज मैं कर सकती थी, क्योंकि मेरे को इस चीज से रिलेटेड कभी कोई नॉलेज नहीं थी। हाँ मेरे को ट्रीटमेंट के बाद इस चीज के बारे में पता चला, और मेरे पेरेंट्स बहुत ही सपोर्टिव रहे, और मेरे को कभी रियलाइज नहीं होने दिया कि मेरे को कैंसर है, या वो कभी ऐसा रिएक्ट नहीं करते थे। मतलब हमेशा मेरे सामने इतना हंस के रहते थे सब। और मतलब होता है ना कि कभी कभी पेरेंट्स से बच्चे के सामने रोने लग जाते हैं, तो बच्चा खुद ही इतना ज्यादा डिमोटिवेट हो जाता है ना कि लगता है कि यार सच्ची में कुछ बुरा हो रहा है। बट हमेशा वो मेरे को बोलते थे कि तेरे को कुछ नहीं हुआ, ठीक हो जाएगी, थोड़े टाइम की बात है। और हमेशा मैंने बोला ना कि हम हर चीज सेलिब्रेट करते थे। अगर दिवाली है तो वी सेलिब्रेटेड दिवाली, हमने कभी कोई फेस्टिवल नहीं छोड़ा। तो सबने बिल्कुल ऐसा ही रिएक्ट किया कि कुछ हुआ नहीं है। मेरे सामने एटलीस्ट किसी ने ये नहीं दिखाया, या कभी कोई इमोशनल नहीं हुआ। बट मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया, मेरी फैमिली ने इतना ज्यादा सपोर्ट किया। कभी मेरे को किसी चीज को लेके मना नहीं किया कि नहीं तुम ये नहीं कर सकती या तुम ये नहीं कर सकती। हमेशा मेरे को बहुत सपोर्ट किया, और कभी उनसे किसी चीज से रिलेटेड परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अगर मेरा कोई इंटरव्यू है या मेरा कोई न्यूज लेटर, दे आर लाइक हमसे मत पूछो, इट्स अबाउट योर जर्नी, एंड प्लीज लोगों को बताओ दैट यू आर अ फाइटर। और शायद इसलिए मैं ये कोशिश करती हूँ इंटरव्यू के थ्रू कि लोगों को इस चीज का एहसास हो कि कैंसर के बाद भी जिंदगी है। बहुत स्टिग्मास है सोसाइटी में कि कैंसर क्योरेबल नहीं है, या लोग बोलते हैं कि कैंसर के ट्रीटमेंट के टाइम हमें शुगर नहीं खाना चाहिए, या ये कम्युनिकेबल डिजीज है। तो सिर्फ इसलिए मेरा मोटिव यही रहता है दैट मैं लोगों को अवेयर कर पाऊं अबाउट कैंसर, सो नो वन कैन फाइट दिस बैटल अलोन। फैमिली ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, और मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरे घर में ही भगवान बसते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा सपोर्ट सिस्टम जब आपको मिलता है ना। और जब मेरे चाचू मेरे को ये बोलते थे कि तेरे को कुछ नहीं हुआ है, हम तेरे को कुछ होने ही नहीं देंगे, तो उससे ज्यादा बड़ी चीज मैं सोच ही नहीं सकती थी उससे आगे। अगर इन्होंने बोल दिया ना तो फिर मेरे को सच्चे में कुछ नहीं होगा। आप जैसे जैसे बोल रहे हो वैसे वैसे आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स जस्ट लिसनिंग टू यू कि वाओ, मतलब जो आपके वर्ड्स है, एवरी वर्ड टेल्स अ लॉट अबाउट योर जर्नी, अबाउट योर फैमिली एंड द काइंड ऑफ सपोर्ट यू हैड, एंड दैट मैटर्स अ लॉट कि कितना आपका फैमिली सपोर्ट है, और जो हिम्मत आपको अपने घर से, अपने चाचा चाचू से, पेरेंट्स से, सबसे मिली है। जस्ट वंडरफुल। अनुराधा आंटी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? मैं आपको अनम्यूट करने का रिक्वेस्ट कर रही हूँ। पायल, जो तुम बातें बोल रही हो ना, मतलब सच्ची को बोल रही है, गूज़बम्प्स आ रहे हैं, वाकई गूज़बम्प्स आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है मैं सच में तुम बात क्या इतना टाइट हग करो, इतनी प्यारी बच्ची हो, कितने अच्छे से अपनी जर्नी। और बेटा बच्चे मतलब पेरेंट्स, तुम्हारे बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारे पेरेंट्स और फैमिली में कभी भी तुम्हारे सामने अपना टेंशन या वो नहीं है। बट आई कैन अंडरस्टैंड कि वो किस फेज से गुजरे होंगे, क्योंकि जब आप अपने बच्चे को सफर करते हुए देखते हो, पर आप मतलब जैसे कीमो में भी जो तुम्हें तकलीफें हुई होंगी या जो कुछ भी हुआ होगा, तो उस टाइम जो पेरेंट्स होते हैं वो इतना हेल्पलेस कंडीशन में होते हैं, बट वो अपना दर्द अपने बच्चों के सामने दिखा नहीं सकते, इसलिए वो सब तुमको इतना प्यार करते हैं और इतना मोटिवेटेड रखा है। इसके लिए उनको भी एक बड़ा सा सैल्यूट कि तुम्हारी फैमिली ने इतना सपोर्ट किया और पेरेंट्स ने भी इतना सपोर्ट किया। बहुत अच्छी बात है। एंड मैम सोचिए, अगर कोई डॉक्टर आपके पेरेंट्स को बोलता है कि आपके बच्चे को कैंसर है, उनका ना मतलब दे जस्ट सॉ देयर वर्ल्ड क्रैशिंग डाउन ना,
बट उस चीज को छुपाना ना, अपने दर्द को पीछे छुपाना और फेस पे वो स्माइल रखना और गोइंग थ्रू दैट जस्ट ट्रीटमेंट, गोइंग विद द फ्लो, हंसते हंसते। तो मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि जिंदगी में ये मत सोचो क्या करना है, कैसे करना है, खुश रहो, हंस के जिंदगी जियो, सब हो जाएगा और सब बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल 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 सही बात है। और जैसे तुम अपने पेरेंट्स के लिए बोल रही हो ना, वैसे मैं अपनी बेटी के लिए बोलूंगी। जब मैं मतलब बच्चे भी फिर हमारे माँ बाप बन जाते हैं। जब मेरी कीमोथेरेपी हो रही थी तब मेरी डॉटर सिर्फ 10th क्लास में थी ना, तो उसने मुझे मेरी जर्नी में कभी नहीं बताया था। बाद में मैं एक कुछ इंटरव्यू दे रही थी तो तब उसने मुझे बताया कि मम्मा आप भी इतने रोते थे, तो हम आपको देख करके ऐसे आपके टाइम बड़ी हिम्मत बताते थे, फिर अपने कमरे में जाके खूब जोर जोर से हम भी रो के अपने आप हल्का हो लेते थे। तो आई थिंक सेम तुम्हारे पेरेंट्स के साथ रहा होगा कि इतना तुम्हारे सामने हिम्मत रखते होंगे पर अंदर से तकलीफ होती होगी तो वो मतलब वो ले आउट करते होंगे। पर चलो बहुत अच्छी बात है, इतने अच्छी फैमिली में मतलब सबने सपोर्ट किया और तुम्हारी जो हिम्मत है उसको दाद देने लायक है बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम। एंड मैम ये सच्ची में बहुत हिम्मत रखने वाली बात होती है, क्योंकि आपकी जिंदगी सिर्फ आपकी नहीं होती है, अब बहुत लोगों से आपकी जिंदगी जुड़ी होती है जो आपसे प्यार करते हैं और वो नहीं चाहते कि आपको कुछ दर्द या कोई तकलीफ हो। तो आपको अपने लिए नहीं, एटलीस्ट दूसरों के लिए तो जीना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोल रही हो बच्चा। अब हम दोनों कनेक्टेड रहेंगे, इतना अच्छा लगा तुमसे मिलके ना आज। डेफिनेटली मैम। मैं वैसे ही बहुत सारे बच्चों की माँ हूँ यहाँ इस ग्रुप में, तुम्हारे को भी मैं अपनी बेटी में जोड़ ले रही हूँ। ओके मैम, नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच। सो मैम आर वी हैविंग अ ग्रुप अबाउट ज़ेनोन को, ऐसा कोई ग्रुप है वेयर वी आर कनेक्टेड? चैट में भेजा है ऑलरेडी, मैंने लिंक भेजा है इस चैट में, तो आप ना व्हाट्सएप ग्रुप। हाँ व्हाट्सएप ग्रुप 4-5 ग्रुप्स हैं, तो मैंने आपको हाँ तो आप मैं एक बार फिर से भेज देती हूँ सबके बेनिफिट के लिए। और एनी से आप टच में हो ना, तो एनी आपको, हाँ जी मैम, तो एनी आपको फेसबुक ग्रुप का भी लिंक भेज दूँगी, ठीक है। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लव इज कैंसर ज़ेनोन को .io करके ग्रुप है, उसका लिंक मैंने भेजा है। तो ओके मैम। तो एक और फिर मैं एक और का लिंक भेज देती हूँ कि, और सो देयर आर 4-5 ग्रुप्स एंड कुछ कुछ लोग ऐसे मल्टीपल ग्रुप्स में हैं। तो बट या जिससे भी आपको कनेक्ट करना कभी भी बता दो, आई विल कनेक्ट, एंड देन फेसबुक ग्रुप का भी हम लिंक कर देंगे। बट वंडरफुल। ओके सो I मतलब just listening to you, I forgot that where I was before. But मेहुल ने काफी एक अच्छी चीज लिखी आपके लिए, आपके नाम का पूरा उन्होंने लिखा, पायल means pleasant, admirable, youthful, adapt and loyal. OMG मैंने देखा नहीं। ओके ओके देखा। थैंक यू सो मच सर, आई मीन दैट्स रियली वेरी वेरी नाइस। Yeah, so नेहा is saying that डिम्पल दी ऐसा लग रहा है जैसे इस बच्चे को सिर्फ सुनते रहे 6 बजे ही ना। so yeah, really I mean I don't know कहाँ से आप इतना आपके अंदर करेज और हिम्मत आया। But Payal, on the same lines, I wanted to hear your your expressions कि आपका जर्नी पहले अलग था और उसके बाद में बिल्कुल अलग हो गया, या फिर what were those moments of truth for you that really touched you very deeply? ज़्यादा भारी क्वेश्चन। मैम एक्चुअली मेरा no I was just thinking बट मैम मेरे को एक्चुअली जब ट्रीटमेंट चल रहा था तो मेरे को इतना ज्यादा पता नहीं था, बट डेफिनेटली ट्रीटमेंट के बाद जब पता चला अच्छा कैंसर था, तो मेरे को लगा कि अच्छा मेरे को कैंसर होके ठीक भी हो गया। तो बाद में अभी मेरे को एक्चुअली जैसे मेरे को बोन कैंसर था, बट मेरे को नहीं पता था बोन कैंसर को ऑस्टियोसार्कोमा बोलते हैं। तो काफी सारी चीजें जैसे जैसे टाइम के साथ मेरे को पता चलती है कैंसर के बारे में और नई चीजें सामने आती है, और मैं अपनी फैमिली को देख के ही सिर्फ मैं ये रीजन बोलती हूँ, शायद आज मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी फैमिली की वजह से हूँ, और मैं सिर्फ अपनी फैमिली की वजह से हूँ कि वो जीने का हिम्मत मिलता है ना आपको, तो सिर्फ उनकी वजह से मैं हमेशा स्ट्रांग रहती थी। राइट। तो जो वो बोलते थे ना, वो मेरे को लगता था कि अगर ये इतना मेरे लिए सैक्रिफाइस कर सकते हैं तो थोड़ा सा तो मैं भी कर सकती हूँ। तो उनको देख के हिम्मत मिलती थी हमेशा। और आप दर्द कैसे सहन करते थे?
मैम एक्चुअली दैट्स आल्सो वाज नॉट इन माय हैंड ना, बट आई हैव टू डू दैट, क्योंकि हमेशा अंदर अंदर सोचती थी कि बुरा वक्त है, ठीक है चला जाएगा। और सबसे बड़ी चीज है, जब मैं फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल में गई थी ना, मैंने छोटे छोटे बच्चों को देखा, 5 साल के 10 साल के बच्चे जिनको कैंसर है, और उनको देख के ये लगता था, उससे पहले मैं ये चीज सोचती थी कि ये बीमारी मेरे साथ क्यों हुई, इतना सब सिर्फ मेरे को क्यों इंड्योर करना पड़ रहा है। बट उन बच्चों को देख के जो मेरे से भी छोटे हैं, जिनको मतलब लोग बोलते हैं ना कि कैंसर, पहले बोलते थे कैंसर सिर्फ इसलिए होता है लोगों को बिकॉज ऑफ कर्मा, बट एवरीथिंग इज नॉट कर्मा। प्रोबेबली द यूनिवर्स इज, इट्स अ प्रोसीजर ऑफ यूनिवर्स टू प्रिपेयर यू फॉर समथिंग बेटर इन योर लाइफ। और उन बच्चों को देख के सिर्फ हिम्मत मिलती थी कि अगर ये इतना सहन कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। उन छोटे छोटे बच्चों को जो वो लड़ रहे हैं, उनको पता भी नहीं है क्या हो रहा है उनके साथ, उनको। राइट नो, वेरी ट्रू, वी ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर। एंड उनको, बच्चों को तो मतलब एक्चुअली में पता भी नहीं होता है कि बस हाँ मेडिसिन जारी है और हर बार हॉस्पिटल जाना है। बच्चे कई बार डिप्रेशन में चले जाते हैं और वो तो कुछ बोलते भी नहीं है, शेयर भी नहीं कर पाते हैं। सो दैट इज वेरी वेरी हार्ट मेल्टिंग मोमेंट, सीइंग किड्स गोइंग थ्रू दैट. So but and that's where people like you and many others come forward to give those, you know, those that comfort to them कि हाँ हम अकेले नहीं है, हम आपके साथ में है। चाहे वो कंफर्ट आप पेशेंट्स को दो या केयर गिवर्स को दो, दोनों को बहुत ज्यादा जरूरत होती है उस वक्त कंफर्ट की। और सब जितने लोगों से भी मेरे बात है, सबसे ज्यादा कंफर्ट उसी से मिलता है जो उस जर्नी से निकल चुका है ऑलरेडी, क्योंकि उनसे बेहतर तो कोई समझ नहीं सकता इस जर्नी को कि क्या क्या होती है एक फैमिली में जब कैंसर डिटेक्ट होता है तब। बट यू गाइज गिव अ लॉट ऑफ होप कि होप इज ऑलवेज देयर। एंड आई बिलीव कि नो, चाहे आउटपुट कुछ भी हो, आउटकम कुछ भी हो सकता है कैंसर में, बट जर्नी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जर्नी ब्यूटीफुल होनी चाहिए, जर्नी सफरिंग की नहीं होनी चाहिए। क्योर जब आएगा तब आएगा, है ना, हर बार क्योर पॉसिबल नहीं है सबके लिए। एटलीस्ट जितना टाइम भी है उतना टाइम हम अच्छे से निकाले, सफरिंग नहीं हो, एंड वी ट्राई टू डू व्हाट इज राइट, व्हाट इज बेस्ट फॉर अस, एंड ऑलवेज कीप दैट होप। और जो होप मिलती है वो दूसरे सर्वाइवर से मिलती है, दूसरे विनर से मिलती है, कि जब ये सर्वाइव कर सकते हैं, जब ये कैंसर से फाइट कर सकते हैं, डिफीट कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। और वो एक चीज होती है, कई बार हम लोग कई बार पेशेंट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करवाते हैं कि जब बार बार बोलते हैं अच्छा किसी को इससे ठीक हुआ है क्या, या फिर किसी ने स्टेज 4 सर्वाइव किया है क्या। अभी इनफैक्ट रिसेंटली किसी पेशेंट को इमोशनल काउंसलिंग का जरूरत था, तो हमने राजेंद्र जी हुई 3 टाइम कैंसर सर्वाइवर, उनसे कनेक्ट किया। तो तब लगता है कि हाँ मतलब, क्योंकि वो पेशेंट एक हमेशा दूसरे सर्वाइवर या दूसरे पेशेंट से बहुत ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं केयर गिवर से, क्योंकि देन यू स्पीक द सेम लैंग्वेज, है ना। तो आपको फिर वो एंड वो पिटी वाली फीलिंग नहीं आ, वो नहीं आता एक्सप्रेशन उसके अंदर कि ओ कैंसर हो गया वैसा। तो जो एक जर्नी से निकला वो एक वॉरियर की तरह काउंसिल कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है कि इट्स ओके, नाउ व्हाट ऑल नीड टू डू, विल टॉक अबाउट दैट कि अब हमें आगे क्या करना है। और एज यू राइटली सेड, सपोर्ट बहुत मैटर करता है, विल पावर बहुत मैटर करती है। सो आउटकम क्या होगा वो हमारे हाथ में नहीं है, बट जर्नी तो हमारे हाथ में है ना। जर्नी को हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है, और उसके लिए जो भी सपोर्ट चाहिए बस मांगो कि क्या चाहिए सपोर्ट, और वो सारा सपोर्ट मिलेगा। या हाँ जी मैम। एंड मैम जिंदगी का दूसरा नाम ही जंग है, कि अगर आप जिंदगी में आए हो तो उतार चढ़ाव आएंगे। और लाइफ में आज इतना कंपटीशन है ना, लोग बस जीतने की तरफ लगे हुए हैं। ये मैटर नहीं करता कि आप हारे या जीते, बट वो मैटर करता है कि आपने कोशिश करी है। और अभी जैसे मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ अपनी जर्नी को, कितना सुकून मिलता है ना कि हाँ मेरे अंदर एक ऐसा टाइम था, बट सिर्फ मैंने उस टाइम पे हिम्मत दिखाई, मैंने कोशिश करी, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। राइट, आप कोशिश करिए, हार जीत पे फोकस मत करिए। राइट। तो पायल, हमारी लाइफ में जब कुछ ऐसा मोमेंट आता है, फेज आता है, तो हम लोगों को हमेशा उससे बहुत ब्यूटीफुल लेसन मिलता है। एवरी क्राइसिस टीचर्स। तो आपके लिए वो इम्पोर्टेंट लेसन क्या है? मैम मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट लेसन था, एक्चुअली आई डोंट हैव वर्ड्स टू से व्हाट टू से राइट नाउ, बट मेरे को जिंदगी से ये सबक मिला है कि जिंदगी में कितनी भी उतार चढ़ाव आए, कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, मेरे को एक्चुअली मैं हमेशा मानती हूँ कि मेरा जो मेन लेसन है कि जिंदगी ना
बहुत बड़ी है और इसमें प्रॉब्लम्स आएंगी, और शायद भगवान ने इसलिए मेरे को ये बीमारी दी कि शायद मैं इससे लड़ सकूं। तो मेरा लेसन यही था कि जिंदगी एक जंग है, मैं हमेशा सबको ये बोलती हूँ, और इसी चीज की वजह से शायद मैं फाइट कर पाई हूँ। right. I'm just smiling by Neha's expression. छोटा बच्चा जान के हमसे ना टकराना रे. Amazing. Yeah, you guys are just awesome. So, what is that one thing that you are grateful for, Payal? मैम आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर माई फैमिली, डेफिनेटली। इसके अलावा मैं कुछ कभी बोलती ही नहीं हूँ, क्योंकि अगर फैमिली नहीं होती, मेरे चाचू नहीं होते, तो शायद मैं यहाँ पे नहीं होती। इतना ज्यादा आई एम सो ब्लेस्ड, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ हर कोई इंसान इतना ब्लेस्ड नहीं होता है कि उसको इतनी अच्छी, इतनी सपोर्टिव फैमिली मिलती है कि आपको वो हर चीज प्रोवाइड करते हैं। एंड जब वो मेरे को बोलते थे ना कि हम तेरे को कुछ नहीं होने देंगे, हम तेरे को यमराज से भी ले आएंगे, डेफिनेटली वो बस बात सुन के ही ना मेरे को ये था कि पायल अब सच्ची में तेरे को कुछ नहीं हो सकता, बस मेरे को हिम्मत रखनी है। तो जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन यही है कि कितनी भी प्रॉब्लम्स आए ना, बस हिम्मत मत हारो, इतना मजबूर कर दो ना उस प्रॉब्लम को कि वो आपके सामने घुटने टेके कि नहीं, क्योंकि आपकी हिम्मत से बड़ा कुछ नहीं है इस दुनिया में। Wow, beautiful. Thank you for and everyone are like I'm so blessed कि सब इतनी blessings दे रहे हैं ना। and ये चीज बहुत अच्छी लगती है कि working for people and creating cancer awareness, जो आपको वो blessings मिलती है ना, वो शायद कहीं ना कहीं काम तो करेंगी आगे जाके। Yeah, definitely, it always does. What is in your bucket list? अभी तो जिंदगी बहुत लंबी है, तो अभी क्या करना है आपको आगे? अभी मैम राइट नाउ मेरा मेन फोकस है कि जस्ट अभी जो कर रही हूँ बस, एक्चुअली आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक अबाउट प्रेजेंट, बट अभी सोचा है कि आई कैन बिकम एन आईएएस ऑफिसर। सो जस्ट थिंकिंग कि यूपीएससी पेपर दे के लेट्स सी अगर वो पास आउट होता है तो। वाह, ये तो काफी अच्छा है। And with that I will हाँ जी मैम, and with that I will never leave ये कैंसर अवेयरनेस क्रिएट करना, इसको कभी नहीं छोड़ूंगी, डांसिंग कभी नहीं छोड़ूंगी। एंड आई ऑलवेज कीप माय पैशन विद मी, मतलब जो चीज कर रही हूँ ऑन द कॉन्ट्ररी साइड, वो चीज भी आप करिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है। Definitely, wonderful. And whenever you go through any low phase, down moments, even now, how do you cope up with that? What is that keeps again कि हाँ नहीं ऐसा नहीं करना है, and then आपको वापस से वो पॉजिटिविटी कैसे आती है, या फिर होता है सब, there are some moments at times where we feel down, तो आप उससे वापस बाहर कैसे आते हैं? और मैम अभी अगर मेरी प्रॉब्लम मतलब अभी लाइफ के बाद लाइक आफ्टर कैंसर ट्रीटमेंट, अभी मेरे को लगता है कि मेरी लाइफ में कोई डाउन फेज है तो मैं उसको कभी इतना बड़ा नहीं मानती, क्योंकि मेरे हिसाब से कैंसर से बड़ी कोई प्रॉब्लम मेरी जिंदगी में नहीं हो सकती। कैंसर ने मेरे को इतनी बड़ी सीख दी है, और शायद मैं हमेशा मानती हूँ कि अब जो प्रॉब्लम होगी ना वो कैंसर से तो बड़ी होने वाली है नहीं, तो अगर मैं उसको लड़ सकती हूँ तो मैं इसको भी लड़ सकती हूँ। एंड जस्ट स्टे पॉजिटिव। और हमेशा मेरे को इतना अच्छा लगता है कि मेरे ट्रीटमेंट के टाइम इतना मेरे को पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिली थी, क्योंकि एनवायरनमेंट का भी बहुत इसमें बहुत बहुत बड़ा फैक्टर रहता है, क्योंकि जिस माहौल में आप रह रहे हो ना वो डिपेंड करता है। तो मैं इतने अच्छे माहौल में पली बड़ी हूँ, और अभी भी जब भी लो फील करती हूँ ना, मैं हमेशा अपनी फैमिली के साथ बैठती हूँ एंड दे जस्ट यूज्ड टू मोटिवेट मी। एंड फ्री टाइम में आई यूज्ड टू वॉच मोटिवेशनल वीडियोस। अभी जस्ट मैं कल ही आपकी जयंत कंदोई सर की वीडियो देख रही थी। He is so inspiring, like fighting cancer 6 times. Really, it's very big thing. लोग एक बार में हिम्मत हार जाते हैं। 9 times. Yeah, so बहुत 9 times. Yes. Yeah, so Okay. that's the, I think in fact जयंत भी यही बोलते हैं कि उनके पास भी उनका विल पावर, फैमिली सपोर्ट एंड देन मेनी अदर थिंग्स दैट ही डिड। सो इसका कोई कैंसर का कोई शॉर्टकट नहीं है। कई बार हम लोग ग्रुप्स पे देखते हैं, कभी कॉन्वर्सेशन चल रहे होते हैं कि दिस विल गिव यू क्योर, दैट विल गिव यू क्योर, बट देन it's a combination of so many things together. It's a combination of your environment, your treatment, your doctor, your family support, your community, your food, your lifestyle,
and then Yes, so ma'am. many things come together to heal that one person, right? So many, there's no shortcut to cancer. Yes, ma'am. And yeah, it's so wonderful, you know, कि आप लोगों ने इतना bravely उस जर्नी से निकले हो. और मतलब ऐसा मुझे हर सैटरडे को सुन के लगता है कि जब हम लोग पूरे वीक इतने पेशेंट्स को काउंसिल करते हैं और फिर यू नो देयर आर समटाइम्स केसेस जो काफी ज्यादा बिगड़ जाते हैं या फिर कुछ ऐसा होता है तो काफी बुरा लगता है. बट जब आप लोगों से मैं बात करती हूँ फिर अचानक से लगता है कि हाँ मतलब सब लोग ठीक हुए हैं तो ये पेशेंट्स भी ठीक होंगे. तो देन अगेन मंडे से वापस हम लोग उनको बहुत मोटिवेट करते हैं और वो सब कुछ होता है. सो थैंक यू फॉर मोटिवेटिंग अस बाय शेयरिंग योर जर्नी एंड इट्स एन इंस्पिरेशन. एंड अनुराधा आंटी has just shared that कभी कभी कैंसर गलत आदमी से पंगा ले लेता है फिर वो रिग्रेट करता होगा. दिस इज ट्रू इन योर केस पायल. So yeah. Ma'am, even everyone are so inspiring here ना. Thank you so much कि सबने अपना टाइम निकाल के यहाँ पे join किया. And thank you, it was a wonderful evening, like I just love it ना. Yeah, same here. And you know, reminds me and everyone in fact of Divya. So Divya is I mean you both are so similar. She also had childhood cancer and then she's a sweetheart of 1 year. She is like connected with so many cancer warriors and guiding them, always available for help. And she just got recurrence and she's undergoing treatment currently. So our blessings, prayers to Divya and Neha and many others who are going through the treatment currently. And बस अब सब लोग वापस से ठीक होकर के आ जाओ और फिर हम लोग will just plan a get together for sure. Definitely we can plan a meeting ना together. Get together हम लोग पक्का करेंगे definitely. But Payal, what is that one line that you want to share with the world? मैं ये जरूर बोलूंगी कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि जिंदगी में प्रॉब्लम्स आती रहती है और शायद इसी को जिंदगी बोलते हैं. और जब आप उठ के आप प्रॉब्लम आ रही है ना जिंदगी में तो आप उठिए, आप लड़िए और आप उड़िए. तो प्लीज हमेशा कभी कभी हिम्मत मत हारिए. बस ये बोलूंगी, खुद पे विश्वास होता है ना तो ऐसा लगता है पूरा आपने पूरी दुनिया जीत ली है. Right. तो एंड कैंसर अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, क्योंकि लोग जब किसी चीज के बारे में अवेयर नहीं रहते, जब उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती है तो वो कहीं ना कहीं वहां पर वो रास्ता भटकना लग जाते हैं और कहीं गलत डायरेक्शंस में चले जाते हैं. तो कैंसर और जो आप काम कर रहे हैं ज़ेनॉन को इतना अच्छा काम कर रहा है कि हर टाइम हर सैटरडे यू नो कैंसर पेशेंट की, हर कैंसर सर्वाइवर की अलग अलग स्टोरी एंड क्रिएटिंग कैंसर अवेयरनेस और लोगों को ये बता रहा है कि हाँ कैंसर ये बीमारी और ये ठीक हो सकती है. ये बहुत बड़ी बात है एंड मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस चीज का एक हिस्सा हूँ. डेफिनेटली ये ठीक हो सकती है एंड you all are the live examples of that. So wonderful. It was pleasure interacting with everybody and once again like very happy to be here, grateful to be here and holding this space with all of you. I have just shared a picture on the it's called Pay, felt like sharing with all of you. So yeah, so जो भी देख सकते हैं वो देख लीजिए. So wanted to share this good news with all of you and yeah, so looking forward to a new beginning and wonderful once again like you know Payal because thank you so much ma'am. It's my pleasure like having an interview with you. It's life moments and experiences that we always cherish and it's not just a 1 hour ka call Payal, you know, every line that you shared tells a lot about your journey and people who are going through this entire experience will relate to it a lot and it will with ripple effects it will reach to many more people who really need. वो होता है ना right time पे right चीज लोगों को मिल ही जाती है. Similarly जिनको भी ये right time पे उनको मिल ही जाएगी ये चीज. So thank you so much and thank you everyone for being here. Helping each other, sharing your experiences, sharing a lot of love and blessings for everyone who is going through this journey. And I'm able to imagine कि एक दिन जरूर वो दिन आएगा जब एक कैंसर एक छोटी बीमारी बन के रह जाएगी और उसका भी
पूरा जर्नी जैसे बीपी, डायबिटीज, अदर क्रॉनिक इलनेस का होता है, वैसे कैंसर का भी एक बहुत ही नॉर्मल चीज हो जाएगा और इतना कोई बड़ा चीज नहीं होगा जैसे कि इतना स्टिग्मा और इतना कॉम्प्लिकेटेड लगता है आज सबको. सो आई थिंक उसके लिए हम सबको साथ में एफर्ट्स, with our combined efforts we'll definitely be able to do that. So there are a lot of things we see that needs to be solved in cancer care a lot. मतलब early detection तो एक बहुत ही बड़ा है जहाँ पे awareness ही नहीं है. So जो स्टिग्मा है, लोग साइन सिम्टम्स होने के बाद में भी नहीं जाते हैं. मतलब मेरे खुद के घर में नहीं हो गए थे तो मैं, और उससे तो मतलब मैं कैसे एक्सपेक्ट करूँ, राइट. 6 महीने तक सिम्टम्स को झेला. तो उस इंडिया में 70% से ज्यादा लोग लेट स्टेज में डायग्नोज होते हैं, विच इज अ वेरी बैड नंबर, क्योंकि उस वक्त तो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट इज वेरी हाई एंड पूरा ही सब कुछ मतलब काफी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती है. तो अगर थोड़ा सा हम कॉशियस रहे हेल्थ के बारे में, थोड़ा सा हम लोग हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें, थोड़ा सा हम लोग अर्ली डिटेक्शन पे फोकस करें, थोड़ा सा हम लोग अवेयर रहें अगर उसके बारे में, तो हम लोग एक्चुअल में लाइफ सेव कर सकते हैं. So that's one thing. During the treatment, people go through many different kind of challenges. उनको इमोशनल सपोर्ट चाहिए, कम्युनिटी सपोर्ट चाहिए, डाइटरी सपोर्ट चाहिए, लो कॉस्ट ट्रीटमेंट चाहिए, बहुत सारी चीजें होती है. वो भी एक अनदर एरिया है दैट वी नीड टू सॉल्व. एंड द लास्ट जहाँ पे सर्वाइवरशिप होती है, क्योंकि कई लोगों को हमेशा फियर रहता है कि वापस आ गया तो, और वो सोच सोच के कई बार वापस आ जाता है. कई बार ऐसा भी होता है कि मतलब क्या जल्दी वापस से रिकरेंस भी हो जाता है. कई बार एंड ऑफ लाइफ सपोर्ट भी चाहिए होता है. तो और कैंसर अभी काफी फैल भी रहा है. इट्स स्प्रेडिंग वेरी फास्ट, ऑलमोस्ट लाइक मेनी पीपल आर गेटिंग डायग्नोज. सो जिस स्पीड से वो फैल रहा है उतनी ही स्पीड से, उसकी डबल स्पीड से हमें भी सॉल्यूशंस लेके आने हैं, हमें भी ऐसी चीजें लेके आनी जिससे सबको हेल्प मिले. सो एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ दिस ऑल इज होप. So जो आप सब लोग प्रोवाइड करते हो. So thank you once again. Thank you everyone for joining this, and yeah, thanks Mehul for your wishes. So wonderful, and we'll meet again in next Sunday, Saturday, 5 p.m. Thanks a lot everyone, and thank you so much Payal for being an inspiration. Looking forward to Thank you ma'am. Thank you everyone. Thank you ma'am. Bye.